कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मेघालय सरकार ने राज्य में कोविड की स्थिति को लेकर एक समीक्षा बैठक की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। राज्य में 13 अप्रैल से 14 दिनों के लिए पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। हालांकि स्थानीय पर्यटक निश्चित पर्यटन स्थलों का दौरा कर सकेंगे। वहीं शिलोंग और आसपास में सभी स्कूलें 14 दिनों के लिए बंद रहेगी। राज्य के दूसरे इलाकों के स्कूलों को लेकर सरकार जल्द ही फैसला लेगी। हालांकि मुख्यमंत्री ने फिर लॉकडाउन की आशंका से इनकार किया है। So 23rd restriction is not for the residents or people who are coming for work or people coming for business. This restriction is for tourists specifically. So tourists who will come in and we are not going to allow tourists to come in. But if somebody is coming in for work or returning back home as a student, obviously they have to follow the protocol. So the testing aspect will be there for 48 hours RT-PCR. And so all these protocols will be followed, and following those protocols, they will be definitely allowed to come back. We are, after what happened last year, we are of the strong opinion that there needs to be a balance between the economy and the livelihood of the people and the safety and security of the people also. Therefore, we are not in favor of complete lockdown, and therefore we have started with the restrictions that we feel should help us in the coming days. But all of this will only be possible with the complete support and cooperation of the public, especially of Shillong area. मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार के पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। वहीं जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार से और वैक्सीन की मांग की जाएगी। We are doing an RT-PCR test, and then once they go to the desired location, they could be their house. They are asked not to come out till the negative report. And I would urge all our citizens, especially of Shillong, that to avoid going out if not necessary, to not be in crowded places. The main issue here is really the crowding that takes place. So please avoid crowded places. Please avoid being in a room that is closed fully for too long, because that's how things spread. So that's really the challenge out here. If we take basic steps to avoid that, we hope that we'll be able to fight this particular situation in a much better manner. Obviously, we also as a state, we may face challenges in the future. But as of now, we have enough to be able to start this program and continue for a large number of days. Since our number is not that large, we have approximately a population of 6.5 to 7 lakh population who are above the age of 45. So it's not a large number, and we have completed close to 80,000 to 1 lakh out of those population. So therefore, that's about 17% has been completed. So we are hopeful that we should be able to get the necessary number of vaccines additionally, because it's not a large number. So we are hopeful that Government of India will ensure that we get the number of vaccinations that we require. But yes, it's not that everything is lying with us right now. It's a process we have to follow, and we will follow with Government of India to get the necessary vaccinations. Also, we are going to be going for a very, very aggressive vaccination program, and I urge all citizens, especially of Shillong area and the different commercial locations like Burning Heart, Tura, Clariat, and other locations where people above the age of 45 must get vaccination done. यहां स्पष्ट कर दें कि आज की समीक्षा बैठक में पाबंदी संबंधी जो भी निर्णय लिए गए हैं वे सभी शिलोंग एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए है। राज्य सरकार को ज़रूरत महसूस हुई तो राज्य के अन्य इलाकों में भी रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। और आज की समीक्षा बैठक को लेकर और किस तरह की बातें सामने आई, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिलोंग से सीधे जुड़े हैं हमारे सहयोगी रोजर सांगमा। रोजर, मुख्यमंत्री की टिप्पणी हम चला रहे थे, शिलोंग के आसपास प्रतिबंध की बात कही है, और क्या क्या जानकारी सामने आई है? जी रंजीत, इस रिव्यू मीटिंग के दौरान कुछ अहम डिसीजन लिए गए थे, कुछ अहम फैसले लिए गए थे राज्य सरकार के द्वारा, मेघालय राज्य सरकार के द्वारा। तो मैं आपको जस्ट बताना चाहूँगा कि पर्यटक जो हैं 23 अप्रैल से उन्हें बंद कर दिया जाएगा। पर्यटक नहीं आ पाएंगे राज्य में, मेघालय राज्य में, और 14 दिन के लिए ये पाबंदी रहेगी।
और 14 दिन के बाद फिर से अगर केसेस बढ़े तो फिर ये पाबंदी बढ़ा भी सकते हैं। और बताना चाहूँगा कि दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑफिसेस जो हैं 50% कैपेसिटी पे रन करेंगे, फंक्शन करेंगे। तो जैसे जितने भी ऑफिसेस हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो इस पे वो पाबंदी लगा दी गई है। और स्कूल्स बंद रहेंगे कल से 14 दिन तक। स्कूल्स सारे नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक सारे स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया गया है रंजीत। और बताना चाहूँगा कि रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट और ईटरी जो है वो 50% कैपेसिटी पे रन करेंगी, फंक्शन करेंगी। और गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो एनकरेज करते हैं कि टेक अवे जो है लोग ऑर्डर करें ऑनलाइन और उसे ले जाए, और ना कि रेस्टोरेंट में बैठ के खाए। तो ये सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं रंजीत। और बताना चाहूँगा कि जो लोगों का जो गैदरिंग है, गैदरिंग पे भी पाबंदी लगा दी गई है रंजीत। जैसे लोग काफ़ी जमा हो रहे थे, तो राज्य सरकार का ये कहना है कि ये जो वायरस है ये पब्लिक गैदरिंग्स में ही फैलता है। तो उनका ये कहना था कि पब्लिक गैदरिंग्स पे भी पाबंदी है। और मैं बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले भी मैंने ये बात बताई थी, RT-PCR जो है, लोग जो बाहर से आ रहे हैं रंजीत, तो RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। सारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट से लोग आ रहे हैं वो RAT टेस्ट नेगेटिव करके भी अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं लोग, तो उनको RT-PCR करना जरूरी हो गया। मैं याद दिलाना चाहूँगा अपने दर्शकों को, ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपने बताया था रंजीत, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो पाबंदी है, ये फिलहाल शिलोंग और जो एडजॉइनिंग एरियाज है, आसपास के एरिया है शिलोंग, इस पे लागू किए गए हैं। और जो दूसरे एरिया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उस पे जो है अभी रिव्यू होना बाकी है। ये डिसीजन जो डिसीजन लिया गया है राज्य सरकार द्वारा, ये इसलिए लिया गया कि क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस जो दर्ज किए गए हैं कोविड केसेस के, वो यहाँ पे ईस्ट खासी हिल्स और शिलोंग एरिया में ज़्यादातर देखे गए हैं, ज़्यादातर दर्ज किए गए हैं। तो फिर ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं मेनली शिलोंग और आसपास के एरिया में है रंजीत। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि टूरिस्ट लोकेशंस जो है, टूरिस्ट लोकेशंस, यहाँ के जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं वो सारे बंद कर दिए जाएंगे। और जो बाहर के टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, वो नहीं आ पाएंगे यहाँ पे। लेकिन जैसे जो लोकल टूरिस्ट है वो आ जा सकते हैं। कुछ जो स्पॉट्स है, टूरिस्ट स्पॉट्स है, वो खुले रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि एकदम कंप्लीट शटडाउन ना हो। मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ के राज्य सरकार है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि कंप्लीट लॉकडाउन के फेवर में नहीं है रंजीत। कंप्लीट लॉकडाउन किया जाएगा तो सारा इकोनॉमी जो है वो डूब जाएगा। तो उनका ये कहना है कि लोगों का स्वास्थ्य और इकोनॉमी ये दोनों जारी रहे एकदम। तो ये सारे डिसीजंस लिए गए थे रंजीत। जी बिल्कुल। और रोजर सांगमा, चूँकि मेघालय ईसाई बहुल राज्य है, क्रिश्चियन लोग ज़्यादा हैं यहाँ पे, सार्वजनिक गैदरिंग पर पाबंदी लगा दी गई है जी। तो संडे के चर्च को लेकर वहाँ पे किस तरह की बातें सामने आई? जी, जो पब्लिक गैदरिंग्स है जैसे कि वो सारे बंद कर दिए गए हैं। और जहाँ तक चर्च का सवाल है, चर्च को ये भी आदेश दिया गया था कि वो 1/3 कैपेसिटी पे रन करे रंजीत। लेकिन अभी जो फ्रेश SOP है वो अभी मिलना बाकी है। चर्चेस को क्या जैसे अभी नया प्रोटोकॉल्स फॉलो करना होगा वो अभी तक हमें पता नहीं है। लेकिन ये ज़रूर पता है रंजीत कि पब्लिक गैदरिंग्स जो है, लोगों का जमावट जो है, वो एकदम मतलब गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। वो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि लोग एकदम बड़ी संख्या में आए। और जैसे मैं याद दिलाना चाहूँगा हमारे दर्शकों को कि रविवार को भी सारे ये आदेश दिया गया था कि जिला प्रशासन ने कि सारे जो शॉप्स हैं, जो ईटरीज हैं, जो छोटे शॉप, सारे जो दुकानें हैं एक्सेप्ट फॉर फार्मेसीज को अलाउ किया गया था खोलने के लिए। उनके अलावा सारे जो दुकानें हैं उनको ये आदेश दिया गया था कि वो बंद रहें संडे को, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि लोग काफ़ी जमा हो रहे थे रंजीत, और लोग अपने फैमिली के साथ आ रहे थे इन जगह में। तो ये जो टूरिस्ट लोकेशंस हैं, जो अभी हाल ही में ये
आज के रिव्यू मीटिंग के बाद ये भी देखा जाएगा कि सारे जो टूरिस्ट लोकेशंस भी बंद किए जाएंगे। रंजीत।